Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, welcome back to your EVS class. I am teaching you chapter number 14 and today date is 28 January 2021 and name of the chapter is means of transport. Means of transport. So student, first of all I will explain you what are the reason why we travel from one place to another. So first we will discuss that what is the reason that we move from one place to another and we need a means of transport, and after that I will explain you different means of transport. So let's discuss first of all why we need, what are the reason to travel. So to our place of work, to our place of work or to reach school. Second point, to meet friends, to meet friends and relatives. Next point, to the market. Next, to other places in the neighborhood. To other places in the neighborhood. Next point, to far off places during holidays. Next, to migrate from one place to another. So these are the few reasons, student, why we move from one place to another. So one by one we will discuss all the points which I have written on the board, because first of all we must understand what are the reason that we travel or we move from one place to another. See, to our place of work
or to rich school. See, your parents daily they are going to their working places where they do the job. जहाँ आपके पेरेंट्स बेटा जॉब करते हैं तो डेली वो उस वर्किंग प्लेस के लिए उन्हें जाना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, ठीक है। और एज ए स्टूडेंट आपको कहाँ डेली जाना पड़ता है? टू रिच स्कूल, ठीक है। आपके पेरेंट्स कहाँ जाते हैं? अपनी वर्किंग प्लेस में जाते हैं where they do the job, and even as a student you also daily move from your home to reach the school. Okay, second point है to the market. Okay student, सेकेंड पॉइंट इज टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. आप देखते होगे कि आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी जाते हो, तो दिस इज आल्सो द रीजन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. या sometime you go to your friend house or at the holidays or some special occasions you go to your relatives houses also. So this is also the reason why we travel. Next है to other places, to the market. See student, to buy the different things which we use daily. Okay, so to buy our daily needs we go to the market. जैसे डेली जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली आपको चाहिए होती हैं, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, ब्रेड है, मिल्क है, ठीक है. वी गो टू द मार्केट, वी बाई मैनी थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, बट फ्यू थिंग्स विच वी नीड डेली, ठीक है. दैट इज फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, ब्रेड है, मिल्क है. सो दिस इज आल्सो द रीजन वाई वी ट्रेवल. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टू अदर प्लेसेस इन द नेबरहुड. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू what are the places in our neighborhood which make our life easier and comfortable. So the neighborhood services are like we go to the bank to withdraw the money or to deposit the money, we go to the post office, we go to police station, or you go to hospital also, park also. So these are the neighborhood services which make our life more easier and comfortable. So this is also the reason we travel in our neighborhood. Now to far off places during holidays. So student, especially the school is closed for many days at the time of summer vacation. So at this time with our family, whether we go to our villages and sister houses, ठीक है, or you go to the relative houses, and even you visit different parts of the country, ठीक है. तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग कब जाते हैं? व्हेन वी हैव हॉलीडेज एंड मोर हॉलीडेज, जब ज़्यादा लंबे समय की छुट्टियां पड़ती हैं तब हम लोग फार अवे प्लेसेस पे जाते हैं. देखो, अब शॉर्ट डिस्टेंस पे हम लोग कब जाते हैं? जब एक ही छुट्टी हो या दो छुट्टी हो. अगर कहीं आपको बहुत दूर जाना है तो आप स्पेशली समर वेकेशन के समय हम लोग फार अवे प्लेसेस पे जाते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट है टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये दिस पॉइंट इज वेरी सिंपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट किससे बिलोंग करते हैं? आर्मी फैमिली से. हर 2-3 साल पे आपके पापा की पोस्टिंग हो जाती है. तो आप मान लो दिल्ली में 3 साल रहे, फिर वहाँ से पोस्टिंग वाराणसी आ गई, हो सकता है वाराणसी से फिर कहीं और चली जाएगी. तो दिस इज आल्सो द रीजन, ठीक है, टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है. ट्रांसफरेबल जॉब में लोग डिफरेंट सिटीज में ड्यू टू जॉब आल्सो, दिस इज द रीजन दे माइग्रेट फ्रॉम one place to another. So this is
also the reason for the travel. So I repeat it one time more for you so that you are able to understand the things. First is your parents go to their working place where they do the job, and even you daily come to school. So you also travel daily because you are coming from your home to school. Second, to meet friends and relative, to meet friends and our relatives, that is the reason also we travel. Next है to the market. See, we to buy the things which we use daily. ठीक है, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, मिल्क है, ब्रेड है. सो फॉर बाइंग दिस थिंग्स वी डेली वी हैव टू गो टू द मार्केट. एंड नेक्स्ट था टू अदर प्लेसेस इन द नेबरहुड. नेबरहुड सर्विसेज ने ही हमारी लाइफ को इजियर और कंफर्टेबल बना रखा है. तो नेबरहुड प्लेसेस में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? मे बी यू गो टू द बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल भी जा सकते हो. ठीक है, एज ए पेरेंट्स कई बार होता है ना, पेरेंट्स स्कूल भी आते हैं, बच्चों के जाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग है, ठीक है, पीटीएम के समय आते हैं या कोई और बात हो गई तो स्कूल्स में भी जाते हैं. ठीक है, पार्क हो गया, हॉस्पिटल्स ऑलरेडी बता दिया, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस इफ यू नीड टू write a letter to your relative or to your friend, so you will get the letter from the post office. So these are the neighborhood services which make our life easier and comfortable. फिर उसके बाद नेक्स्ट आर टू फार ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग हॉलीडेज. जब ज़्यादा दिन की बेटा छुट्टी पड़ती है तो हम डिस्टेंस प्लेसेस पे जाते हैं. हो सकता है हम घूमने भी चले जाएं, लोग टेम्पल्स दर्शन करने जाते हैं या इंडिया के किसी पार्ट को देखने चले जाते हैं, या तो फिर अपने विलेजेस में जाते हैं, एंसेस्टर हाउसेस जहाँ आपके दादा दादी या नाना नानी का घर है. ठीक है, अगर डिस्टेंस जब ज़्यादा हॉलीडे होता है तो हम लॉन्ग डिस्टेंस प्लेसेस पे जाते हैं. ठीक है, कहीं टूर पे ही चले गए, इंडिया के डिफरेंट पार्ट विजिट कर आए आप. सो ये सब चीज़ें आएंगी इसमें. ठीक है, और लास्ट था टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. माइग्रेट का रीज़न ट्रांसफरेबल जॉब भी हो सकता है. ठीक है, ये रीज़न भी हो सकता है, जैसे आप आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हो, मैक्सिमम आप लोग के पापा लोग की हर 2-3 साल पे पोस्टिंग हो जाती है, तो आप एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से भी दूसरे स्टेट मूव करते रहते हो. ठीक है, सो दीज आर द रीज़न वाई वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, नाउ सी, this is a picture given, some of the vehicles. This is auto rickshaw, car, train, bus, aeroplane and bicycle. Okay, so this is auto rickshaw, this is car, this is a train, and this is bus, aeroplane and cycle. So after, now see this picture, observe this different व्हीकल्स, वैरायटी ऑफ व्हीकल्स के नाम दिए हुए हैं बेटा आपको. सो नाउ यू हैव टू टेल, नेम द व्हीकल यू वुड यूज इफ यू वर गोइंग टू द लोकल मार्केट. आप लोकल मार्केट जा रहे हो तो क्या व्हीकल यूज करोगे? ऑटो रिक्शा से जाओगे. ठीक है, या तो आपके पास अपनी पर्सनल कार है तब भी आप जा सकते हो. ठीक है, लोकल मार्केट में जा रहे हो तो आप ट्रेन से नहीं जाओगे बेटा, ट्रेन से लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं. ठीक है, ट्रेन जब हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाते हैं देन वी यूज द ट्रेन. अब मार्केट में जाना है, इतनी बड़ी ट्रैक, मार्केट में ट्रेन थोड़ी ना चलती है. मार्केट में तो रोड होते हैं, दैट इज कनेक्टेड बाय द रोड, तो ट्रैक्स पे चलती हैं ट्रेनें, तो मार्केट में तो जाएंगी नहीं. इज इट क्लियर? सो आप ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हो, या तो आपके पास पर्सनल अपनी कार है तो आप कार से भी मार्केट जा सकते हो. नेक्स्ट है ए फ्रेंड हाउस इन अदर लोकेलिटी. अगर फ्रेंड का हाउस है अदर लोकेलिटी में तो आप कैसे जाओगे? आपके फ्रेंड का हाउस है तो आपके ही लोकेलिटी, अदर लोकेलिटी में है तो आप साइकिल से भी जा सकते हो, लेकिन अभी आप नहीं जाओगे क्योंकि आप तो छोटे हो, अभी तो आप क्लास 3rd में ही पढ़ रहे हो, इसलिए आप साइकिल से नहीं जाओगे. अगर अदर लोकेलिटी में जाना है तो आप अपने पेरेंट्स के संग जाओगे, तो हो सकता है पेरेंट्स आपको ऑटो रिक्शा से ले जाएं, या तो पर्सनल आपके यहाँ खुद की कार हो तो आपको कार से ले जाएं, क्योंकि आप छोटे हो ना,
हाँ, जो बच्चे 9, 10, 11, 12 में हो जाते हैं, बड़े बच्चे, सीनियर बच्चे, तो वो साइकिल से अपने फ्रेंड्स के यहाँ भी चले जाते हैं, अदर लोकेलिटी में भी, अगल बगल वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि वो बड़े बच्चे हैं। आप अभी छोटे हो, ठीक है, आप अभी थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, अभी आप इतने बड़े नहीं हो, क्योंकि रोड्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। ऑल टाइप, डिफरेंट टाइप्स, वैरायटी ऑफ व्हीकल्स आपको रोड पे देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो बेटा। तो अभी आप किसके सुपरविजन में, अगर आपको अपने फ्रेंड के यहाँ भी जाना है कहीं, तो आप किसके सुपरविजन में जाओगे? अपने पेरेंट्स के। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है अब अनदर कंट्री, अगर आपको दूसरी कंट्री में जाना है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर कंट्री। तो अनदर कंट्री में आपको जाना है बेटा, तो हम किससे जाएंगे? एरोप्लेन से जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो रोडवेज हैं, ठीक है, रोडवेज हैं आपके, और जो रेलवेज हैं, दीज आर द लाइफ लाइन ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के जितने भी रेलवेज हैं, ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारी ट्रेनें दूसरे कंट्री में भी जाती हैं, ठीक है। ये अगर हम इंडिया रेलवे की बात करेंगे, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द आवर कंट्री, रेलवे नेटवर्क ऑफ आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। कोई दूसरे देश की कभी सुना है तुमने ट्रेन आई हमारी कंट्री में? नहीं। सारे देशों ने अपने देश के अंदर डिफरेंट सिटीज और स्टेट्स में ट्रैक्स लगा रखी हैं ट्रेन को रन करने के लिए, ठीक है। अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो बेटा, तो आप जाओगे एरोप्लेन से। यू विल विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आप चूज करोगे? एरोप्लेन, ठीक है। अभी आगे चल के आपको बताएंगे एरोप्लेन किस में आता है, एयर ट्रांसपोर्ट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है योर एंसेस्ट्रल टाउन। एंसेस्ट्रल टाउन का मीनिंग ये होता है बेटा, जो आपका विलेज में, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आपके मम्मी पापा के मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, जो वो एरिया जहां आपके कई पुश्तें चली आ रही हैं, ठीक है, जो आपकी फैमिली है, तो कई पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं पे आप लोग बसे हुए हो उस एरिया में, तो वो आता है आपका एंसेस्ट्रल टाउन, ठीक है। जहाँ पे आपके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, उनके भी मम्मी पापा, ऐसे कई जनरेशन की बात हो, जो उसी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एंसेस्ट्रल टाउन। उसको कहा जाता है एंसेस्ट्रल टाउन, जहाँ हमारी फैमिली की कई जनरेशन रह चुकी हैं, ठीक है। तो वो है एंसेस्ट्रल टाउन आपका, ठीक है। अब वहां जाने के लिए, अगर हो सकता है आपका विलेज बहुत दूर है, तो आप ट्रेन से चले जाओगे। 5-6 आवर का रास्ता है, 200-300 किलोमीटर है, तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो। आपके पास अपनी पर्सनल कार है, तो आप अपनी कार से भी जा सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया यहां तक। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग बात करेंगे बेटा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी हेडिंग लिखी हुई है, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर आल्सो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल दैट वी यूज टू ट्रेवल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले ये समझ लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता क्या है। द डिफरेंट द डिफरेंट द डिफरेंट ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ the different types of vehicles that we use different types of vehicles that we use to travel are called it means of transport,
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की मीनिंग समझो। ठीक है, देखो डिफरेंट काइंड ऑफ ए व्हीकल्स, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं। जैसे अभी मैंने कुछ नाम पढ़ के आपको बताए थे, ऑटो रिक्शा है, बस है, कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, बाइक है, एरोप्लेन है, इवन हम लोग शिप से भी जाते हैं। सो वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? ट्रैवल में। ट्रैवल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। देखो बस में आप बैठ जाओ तो बस किस पे रन करती है? व्हील पे रन करती है। अगर हमें इतना खुद पैदल चल के जाना पड़े, जैसे ओल्ड टाइम में क्या था, अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या थे, दे ऑलवेज मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। और वो कैसे जाते थे? वाइल वॉकिंग, क्योंकि उस समय डिस्कवरी ऑफ व्हील नहीं हुई थी। तो ये सब क्या है? ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं आज। ठीक है, इसीलिए हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई है। पहले के समय में क्या था, लोग बहुत, ये जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट थे इतने ज़्यादा नहीं थे, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत लेस थे। सो लोग इतना ज़्यादा मूव नहीं करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट इन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करो बेटा, तो आज तो इतने मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए हैं कि ड्यू टू द सिचुएशन, आप अपने टाइम को बचाने के लिए, आपके पास बहुत टाइम है तो आप रेलवे से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो। कहीं आपको बहुत इमरजेंसी है, शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है, तो यू कैन गो, अरे शॉर्ट टाइम में, नॉट डिस्टेंस, शॉर्ट टाइम में कहीं आपको रिच करना है, बहुत इमरजेंसी है, तो आप एयरपोर्ट फैसिलिटी से भी जा सकते हो। तो आज हमारे पास वैरायटी ऑफ व्हीकल्स के संग संग मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू विच ऑप्शन यू चूज। ओके, क्योंकि सबके जो मनी है ना, तो मनी सबसे ज़्यादा पेड किस में करनी पड़ती है? एयर ट्रांसपोर्ट में। चलो अभी पढ़ाएंगे तो बताते हैं। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा मनी लगती है। तो अब ये डिपेंड करता है मनी पे भी। ठीक है, अब देखो, दे हेल्प पीपल एंड गुड्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हाट द रोल प्ले बाय द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट? पहले मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट तो तुमको समझ में आ गया, जो वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं विच वी यूज फॉर ट्रैवल। तो वैरायटी ऑफ व्हीकल जिनको हम लोग ट्रैवल के लिए यूज करते हैं वन प्लेस टू अनदर, तो इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एंड व्हाट रोल इज द प्ले बाय दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? ये हमें तो कैरी करते हैं, इसके साथ साथ हमारे गुड्स को भी कैरी करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हम कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत सामान हम लेके जाते हैं ना अपने संग बेटा, तो दैट इज द रीजन व्हेन वी हैव टू गो, दे हेल्प पीपल एंड गुड्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गुड्स मतलब समझ में आ गया, जैसे हम लोग कभी फार डिस्टेंस जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो क्या हम 10 डेज के लिए कहीं जा रहे हैं तो हमने कपड़े भी तो चेंज करने हैं, तो कुछ सामान हम अपने संग कुछ लगेज लेके जाते हैं ना, तो ये हमें भी कैरी करते हैं और हमारे गुड्स को भी कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखो, व्हेन वी हैव टू गो अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम होम वी यूज ए साइकिल, कार और स्कूटर। If the place is far, we use a train or an aeroplane. Thus, the vehicle we use depend on how far we have to go and how much money we can spend. देखो, ठीक है, इट्स अ गुड लाइन गिवन। अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है तो हम साइकिल से जाते हैं, या तो हमारे पास बाइक है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, आप उससे भी जा सकते हो। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो देखो बेटा, ये डिपेंड करता है, जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हम चूज करते हैं ये डिपेंड करता है कि हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। मान लो तुम्हें सिर्फ 200 मीटर जाना, 200 मीटर बहुत डिस्टेंस नहीं होता है इतना। 200 मीटर के इससे बड़े ग्राउंड में आप लोग खेलते हो, इससे बड़े ग्राउंड में खेलते हो। मान लो 200 मीटर जाना है, साइकिल है आपके पास, उठाए चले गए, साइकिल से भी जा सकते हो भाई। लोग तो 50 मीटर भी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं, क्योंकि आजकल आज के ह्यूमन बींग्स को इतनी ज़्यादा फैसिलिटी की आदत पड़ गई है कि लोग बगल में भी जाते हैं दुकान पे, अगर बाइक उनकी बाहर खड़ी है तो बाइक से ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग ने अपने ऐसी हैबिट्स बना ली हैं। ठीक है, सो तो ये, और अगर हमें फार प्लेसेस पे जाना है,
तो हम लोग फार प्लेसेस में जाने के लिए ट्रेन यूज करते हैं और एरोप्लेन यूज करते हैं। अब देखो एरोप्लेन वही यूज करेगा जिसके पास मनी ज्यादा है। क्यों? बिकॉज एरोप्लेन टिकट्स आर वेरी कॉस्टली। ठीक है, क्योंकि बाई चांस आपको वाराणसी से दिल्ली जाना है तो आपकी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत आपको 8 आवर्स में पहुंचाती है, और आप एरोप्लेन से जाते हो तो 1 आवर में पहुंच जाते हो। 7 आवर्स सेव हो रहे हैं आपके। लेकिन डिफरेंस कहां आ रहा है? मनी। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मनी स्पेंड करते हो। अगर आप ज़्यादा मनी स्पेंड करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, 7 आवर्स आपके बच गए, है ना। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट एरोप्लेन से जाते हो तो वहाँ पे देखो सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन है, बट इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, और रेलवेज बहुत सस्ता है। मैक्सिमम आप देखो एवरेज पीपल्स रेलवे से ही ज़्यादा जाते हैं। दे ट्रेवल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री थ्रू रेलवेज, क्योंकि ये बहुत इसमें जो आपको मनी पे करनी पड़ती है टिकट के लिए, दैट इज लेस अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू पे। सो आवर कंट्री इंडिया, हमारी कंट्री में अगर फार डिस्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा कुछ यूज़ होता है बेटा तो वो रेलवेज है। इसीलिए इंडियन रेलवेज को लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री बोला गया है। लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री इसीलिए बोला गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा लेस अमाउंट ऑफ मनी आपको किस में पे करनी पड़ती है? लेस अमाउंट ऑफ मनी आपको रेलवेज में पे करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब जो मैंने डिस्कस किया उसकी शॉर्ट रिकैप्चुलेशन करा दूं, जिससे कि सर ने क्या क्या बोला आप पॉइंट्स बना के नोट भी कर सकते हो। पहले मैंने रीजन डिस्कस किए थे, फिर बाद में मैंने बोला मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होता क्या है। तो जो डिफरेंट टाइप के हम लोग व्हीकल्स यूज करते हैं टू ट्रेवल और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वही आपका होता है मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। और मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हाउ इट हेल्प अस, ये हमें भी कैरी करता है और हमारे गुड को भी मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है तो हम साइकिल भी यूज कर सकते हैं, बाइक भी, ऑटो रिक्शा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे कहीं नेबरहुड प्लेसेस में जा रहे हो तो ऑटो रिक्शा से चले गए। ठीक है, तो और अगर फार अवे जाना है तो हम लोग रेलवे से जाते हैं या तो फिर एयरवेज से। इट डिपेंड हाउ मच मनी यू कैन स्पेंड, क्योंकि अगर आप एयरवेज से जाओगे तो आपका टाइम बहुत सेव होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ मनी आपको ज्यादा स्पेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो अब हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट पे आ गए। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। एक मैच द कॉलम है, इसे कर लेते हैं जरा सा, और उसके बाद फिर लैंड ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये रोड है, वाटर, एयर और रेलवे, रेलवे लाइन। ठीक, हियर इट इज एरोप्लेन, एरोप्लेन, ट्रेन, कार, शिप। अब देखो बेटा ये सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ही हैं। आ रही है बात में समझ में? ये सारे व्हीकल्स ही हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। कुछ लैंड पे चलते हैं, कुछ वाटर में और कुछ एयर में। दैट्स अ डिफरेंस है। तो ये डिफरेंट मोड ऑफ व्हीकल्स ही। जैसे रोड है तो रोड पे क्या चलेगा? रोड पे कार चलेगी, शिप वाटर में चलती है, ट्रेन ट्रैक्स पे चलती है, एरोप्लेन्स एयर में जाते हैं। तो रोड पे क्या जाएगी? कार, कार विल मूव ऑन द रोड। वाटर में क्या होगा? शिप। एयर में कौन जाएगा? एरोप्लेन। और रेलवे लाइन, ट्रैक किसके लिए होती है? ट्रेन के लिए होती है। इज इट क्लियर? ट्रैक किसके लिए होती है बेटा? ट्रेन के लिए होती है। ये बहुत सिंपल मैथ का कॉलम था, इसमें वैरायटी ऑफ व्हीकल्स दिए थे। अब उनमें से हमें चूज करना था कि कौन व्हीकल कहां चलता है। ठीक है, रोड पे शिप चलती है? नहीं चलती। ट्रेन चलती? नहीं, वो ट्रैक पे चलती। एरोप्लेन एयर पे। तो रोड का हो गया कार,
वाटर में क्या चलेगी, शिप और बोट्स, और एयर एरोप्लेन एंड रेलवे ट्रेन. Okay, thank you student. We will continue the topic in next video.